آپ کو بتائیں کہ اشال فاطمہ کیس میں اہم پیش رفت، ورثہ کے مطالبے پر قتل، اغوا اور گینگ ریپ کی دفعات شامل، شفاف تحقیقات کے لیے 10 پولیس افسران پر مشتمل GIT تشکیل، چالان 10 سے 12 روز میں جمع کرانے کا اعلان، DPO جنگ ساجد حسین کی GIT ارکان سمیت پریس کانفرنس، پولیس سوشل میڈیا پر افواہوں سے متاثرہ خاندان اضطراب کا شکار، پولیس حقائق کی بنیاد پر کارروائی کر رہی ہے۔ مقتولہ کے ورثہ بولے اشال فاطمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اب بھی تحفظات ہیں۔ DHQ ہسپتال میں بروقت طبی امداد نہیں دی گئی تھی۔ مقتولہ کے ماموں حیدر علی شاہ نے کہا، ورثہ کا واحد مطالبہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی پر اہل خانہ نے احتجاج صرف مؤخر کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ اشال فاطمہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، DPO ساجد حسین کا SP انویسٹیگیشن رحمان قادر اور GIT ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ورثہ کے تمام تحفظات دور کر دیے گئے ہیں۔ مقدمے میں قتل، اغوا اور گینگ ریپ کی سنگین دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ شفاف تحقیقات کے لیے 10 پولیس افسران پر مشتمل GIT بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جو 10 سے 12 یوم میں فائنل چالان جمع کرائے گی۔ DPO جنگ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں سے متاثرہ خاندان میں اضطراب پیدا ہوا، تاہم پولیس حقائق کی بنیاد پر کارروائی کر رہی ہے، جس کے تحت کیس میں نامزد 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ورثہ کی نشاندہی پر ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں منشیات کے استعمال کے واضح شواہد نہیں ملے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ ابھی موصول ہونا باقی ہے۔ ورثہ کو اسے متعلقہ فورم پر چیلنج کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہی کے کنسرنز کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہ کیس کے اندر ہم نے 365 دفعہ اور قتل کی دفعہ اور گینگ ریپ کی دفعہ جو ہے وہ اس کا اعزاز اس کو ایڈ کر دیا۔ مقتولہ کے ماموں حیدر علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اب انصاف کی جلد فراہمی کی امید ہے۔ ورثہ کا واحد مطالبہ انصاف کے تقاضے پورا کرنا ہے، تاہم انہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اب بھی تحفظات ہیں، کیونکہ DHQ ہسپتال میں بروقت طبی امداد نہیں دی گئی۔ مزید بولے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی پر اہل خانہ نے احتجاج صرف مؤخر کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ ہمارے کچھ وہ تھے مسائل تھے جو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، تو فیوچر میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی جلدی انصاف اور اچھی ہمیں خبریں ملیں گی۔ جہاں متاثرہ خاندان انصاف کا منتظر ہے، تو وہیں پولیس نے مقررہ وقت میں چالان عدالت بھیجنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ اویس خان، City 41 چنگ۔ بجٹ میں گاڑی مالکان کے لیے بڑا جھٹکا، حکومت نے شہریوں پر نیا بوجھ ڈال دیا، گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ملکیت تبدیلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ، کمرشل ٹرانسپورٹرز پر مالی بوجھ 3 گنا تک بڑھنے کا امکان، ڈیلرز پر بغیر رجسٹریشن نے گاڑی کی ڈیلیوری پر بھی پابندی عائد، شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہیکلز مالکان کے لیے بری خبر، پنجاب میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں 20 سال بعد اضافہ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے دوران وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی تجویز، کمرشل لوڈر گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں 3 گنا اضافے کی تجویز سامنے آ گئی۔ 4060 کلو گرام سے 8110 کلو گرام والی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس 6600 روپے کرنے کی تجویز، اس سے قبل ٹوکن ٹیکس 2200 روپے مقرر تھا۔ 8120 سے 12000 کلو گرام والی وہیکلز کا ٹوکن ٹیکس 4000 سے بڑھا کر 12000 کر دیا گیا۔ 12000 سے 16000 کلو گرام والی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس 3 گنا اضافے سے 18000 روپے کیا جا رہا ہے، جبکہ 16000 کلو گرام سے زائد وزن والی گاڑیوں کا سالانہ ٹیکس 8 سے بڑھا کر 24000 روپے کیا جائے۔ کاروں کے ٹوکن ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا۔ 1000 cc سے 2000 cc تک ٹوکن ٹیکس میں انوائس ریٹ کا 0.1% اضافہ ہوگا۔ 2000 cc سے بڑی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس گاڑی کی انوائس کا 0.4% کرنے کی تجویز ہے۔ وہیکل ڈیلرز پر بغیر رجسٹریشن نئی گاڑیوں کی ڈیلیوری پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عمیر عصمت، City 41 فیصل آباد۔ صوبائی بجٹ میں فکس ٹیکس اور ڈیجیٹلائزیشن کا نفاذ نامنظور، انجمن آڑتیاں جنگ کی جانب سے تحفظات کا اظہار، فکس ٹیکس کے نفاذ اور مڈل مین کو بائی پاس کرنے کی پالیسی مسترد کر دی، حکومت زمینی حقائق کا ادراک کرے، کروڑوں کی فیس وصولی لیکن منڈیوں میں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں۔ پنجاب بجٹ میں منڈیوں کی اچانک ڈیجیٹلائزیشن اور آڑتیوں کا کردار محدود کرنے کی پالیسی پر انجمن آڑتیان جنگ نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیے بغیر 70 سال پرانے روایتی نظام میں یک طرفہ تبدیلی لانا کاروبار کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ منڈیوں کا 80% لین دین نقد اور باہمی اعتماد پر چلتا ہے، جبکہ چھوٹے اور ان پڑھ کسانوں کے پاس نہ بینک اکاؤنٹس ہیں اور نہ ہی ڈیجیٹل ایپس کی سمجھ رکھتے ہیں۔ زراعت سے وابستہ کاروبار موسم اور قدرتی آفات کے تابع ہیں، ایسے میں
में फिक्स टैक्स का निफाज ताजरों पर इजाफी बोझ साबित होगा। आड़ती किसानों को बीज, खाद और नकद रकम के लिए फौरी उधार देता है। मिडल मैन को बाईपास करने से किसान का ही नुकसान होगा। करोड़ों रुपए मार्केट फीस देने के बावजूद हुकूमत गला मंडी और सब्जी मंडियों को बुनियादी सहूलियात, पक्की सड़कें और सर्विस देने में नाकाम रही। छोटी सी गुजारिश ये है कि आड़ती 70 साल से इस निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। आड़ती मंडियों का हुस्न है, मंडियों के स्टेक होल्डर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाने से पहले हमें किसी किस्म का एतमाद में नहीं लिया। सब्ज़ी मंडी में ज़्यादातर जो अफराद का मजमुआ आता है, यानी लोगों का बेशुमार रश होता है। यहाँ जो आम कंज्यूमर आता है वो उसके पास अकाउंट्स नहीं हैं, उसके पास ईजी पैसा, जैश कैश के अकाउंट नहीं है, ना ही हमारे ज़मींदारों के पास बैंकों के अकाउंट हैं जी। न पिछले बजट में गवर्नमेंट ने मंडियों के लिए कोई फंड मुख्तस किए, ना इस बजट में कोई गवर्नमेंट ने मंडियों के लिए कोई फंड मुख्तस किए। आड़तियों का मुतालबा है कि हुकूमत जमीनी हकायक का इदराक करे और ताजी बिरादरी को एतमाद में लिए बगैर मंडियों पर कोई भी एकतरफा फैसला मुसल्लत न करे, वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। नया सोलर सिस्टम खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सोलर एसोसिएशन फैसलाबाद ने जल्द कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। नायब सदर शाहिद अली कहते हैं, सोलर पर जीएसटी की शरह बरकरार रहने से इंडस्ट्री तरक्की की राह पर गामजन होगी। वफाकी बजट में सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का सोलर सिस्टम पर जीएसटी टैक्स में इजाफा न करने के फैसले पर सोलर एसोसिएशन फैसलाबाद का इजहार इत्मीनान। नायब सदर शाहिद अली का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने बजट में जीएसटी न बढ़ाकर तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया। सोलर पर जीएसटी की साबका शरह कायम रहने से इंडस्ट्री को मजीद तरक्की मिलेगी। ये लोगों ने मसनूई जो इम्पोर्टर और माफिया, उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी और स्टॉक वैसे अपना खुद ही से रेट बढ़ा दिया। हालांकि पहले भी गवर्नमेंट ने तजवीज़ नहीं दी, ऐसा नहीं था, मगर हमने फिर भी रिक्वेस्ट की। शुक्र अल्लाह का, वो अब नहीं लगा, जीएसटी नहीं लगा। अब जो प्राइस है 8-10 रुपये पैनल की बढ़ गई थी, जो मसनूई बनाई हुई थी, तो शुक्र अल्लाह अब वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब वो अपनी पुरानी जगह पे आ रही हैं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के फैसले से कारोबार को तकवीयत के साथ आम आदमी की कुव्वत खरीद बेहतर होगी। कैमरामैन मोहम्मद मोहित के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सूबाई बजट में सनती शहर के साथ सौतेली मान जैसा सलूक, अहम मंसूबे सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा न बन सके। फैसलाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होने से कासर। आइंदा माली साल के लिए मेट्रो बस मंसूबे से भी हवा निकल गई। गटवाला पार्क सफारी पार्क के दर्जे पर फाइज होने से महरूम। किनार एक्सप्रेसवे, नए अंडरपासेस, फ्लाईओवर स्कीमें भी एडीबी का हिस्सा न बन सकें। सूबाई बजट में सनती शहर के अहम मंसूबे नजरअंदाज। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा न हो सका। आइंदा माली साल में मेट्रो बस का चलना भी ख्वाब बन गया। गटवाला पार्क को सफारी पार्क का दर्जा देने की स्कीम भी एडीपी में शामिल न की गई। फैसलाबाद किनाल एक्सप्रेसवे, नए अंडरपासेस, फ्लाईओवर की स्कीमें भी एडीपी का हिस्सा न बन सकी। फैसलाबाद रिंग रोड का तोसीम मनसूबा भी हुकूमत की नजरों से ओझल रहा। फैसलाबाद डिवीजन में ब्यूरोक्रेसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 1.5 अरब की स्कीमें भी फारग। फैसलाबाद डिवीजन में 80% जारी पुरानी तरह के स्कीमों के लिए फंड मुख्तस हुए। आइंदा माली साल के लिए नई स्कीमों को एडीपी का हिस्सा न बनाया गया। किनार रोड की रिमॉडलिंग, जाल चौक से सलीमी चौक तक फ्लाईओवर का मंसूबा भी एडीबी से ड्रॉप। गेटावाला चौक, अंडरपास, मिलेट चौक से डिप्टी वाला इंटरचेंज, एक्सप्रेसवे का मंसूबा भी नजरअंदाज। कलीम शीट पार्क की रिमॉडलिंग, डिस्कोर, तालनेवाला रोड, खोड़ियाला में फ्लाईओवर की स्कीम ड्रॉप। मकवाना फ्लाईओवर, नडवाला, अमीपुर बंगला और फैसलाबाद के अतराफ में एक्सप्रेसवे का मंसूबा भी तरजीह न दी। जगदुरा अंडरपास, रसालेवाला डबल रोड की तमीर और नवाज शरीफ जनरल हॉस्पिटल की स्कीम भी ड्रॉप कर दी गई। फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्कीमें एडीबी से फारग। आवारा कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर्स, फूड कोर्ट, पार्किंग प्लाजा, समनाबाद मॉडल कब्रिस्तान की स्कीमें भी ड्रॉप कर दी गई। डीसीसी, डीडीसी और डीडब्ल्यूपी की समझियां प्रपोजल किसी काम न आ सकी। कैमरामैन जैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। पार्कों की बहाली और तज़य्युन व आराइश के ख्वाब चकनाचूर। सूबाई बजट में हार्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद की तजावीज़ नजरअंदाज। एक भी मंसूबा हुकूमत की तरजीहात में शामिल ना हो सका। 1 अरब 70 करोड़ की तमाम स्कीमें खटाई में पड़ गई। कदम फराहमी पर तफरीही मकामात की हालत जार दिन ब दिन अबतर और काबिल रहम होने लगी। माली साल 2026-27 के बजट में हॉर्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद की कोई तरक्याती स्कीम मंजूर न हो सकी, जिसके बायस हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम 353 पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम। जबकि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बेशतर पार्कों में वॉशरूम्स की सहूलत न होने से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी परेशानी में मुब्तला है। शहर के मुतअद्दिद पार्कों की 4 दीवारी खस्ता हाल, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात बढ़ गए। पार्कों में बच्चों के प्ले एरियाज टूट फूट का शिकार, तफरीही सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। तरक्याती फंड की अदम फराहमी से पार्कों की तज़ीन व आराइश और देखभाल का अमल मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया। हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्कों की बहाली समेत नए पार्कों की तमीर के लिए 1 अरब 70 करोड़ की स्कीमें मंजूर के लिए भिजवाई गई थी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद।
सूबाई बजट में फैसलाबाद के लिए तिब्बी मंसूबों को शदीद झटका। नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का मंसूबा नजरअंदाज। 68 जिम्बे जंग रोड पर 60 बेड्स पर मुश्तमिल तहसील अस्पताल भी बजट से ड्रॉप। पंजाब डेंटल कॉलेज की तामीर, डेंटल टावर और टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में नए इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर भी लट गई। आवाम को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद की जानिब से माली बजट 2026-27 में सेहत के मुतअद्दद मंसूबे भिजवाए गए, मगर बदकिस्मती से सेहत से मुतलिक अहम मंसूबे बजट में शामिल ना किए जा सके, जिसमें तहसील जरावाला में बनने वाला 250 बेडेड नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, इसके अलावा 68 जिम्बे जंग रोड पर 60 बेड पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का मंसूबा भी मंजूर ना हो सका। पंजाब डेंटल मेडिकल कॉलेज की तामीर और डेंटल टावर और इसके साथ फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में 100 बेड पर मुश्तमिल नए इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा भी लटा गया। सूबाई बजट 2026-27 में फैसलाबाद के अहम मंसूबे मंजूर ना किए जा सके। सेहत सहूलियात के मंसूबे मंजूर ना होने के सबब मरीज बेहतर इलाज की सहूलत से महरूम रहे। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब का 5,903 अरब 40 करोड़ का बजट पेश। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का टैक्सेस में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पूरे बजट में अवामी तरजीहात को यकसर नजरअंदाज किया गया। हुकूमत को चाहिए था कि ताजिर दो स्कीमें मुतारिफ कराई जाती हैं। हुकूमत पंजाब ने 5,903 अरब 40 करोड़ का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया। तालीम के लिए 750 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 752 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत पंजाब ने महसूल वसूली का 1000 अरब रखा। बजट में टैक्सेस में इजाफे पर ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल। ताजिर गाजी का कहना था कि बजट में अवामी तरजीहात को नजरअंदाज किया गया है। ताजरों पर टैक्सेस की भरमार नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए था कि ताजर दो स्कीमें मुतारिफ करवाए जाएं। ताजर जो बातें करते हैं, जो आपके मुल्क में रीढ़ की हड्डी हैं, जो मईशत में तरक्की का किरदार अदा कर सकते हैं, जो आपको टैक्स देते हैं, उनमें आपकी तनख्वाहें चलती हैं, क्या वो उन बंदों को पास बिठा के उनकी जो इस वक्त वो शदीद परेशान हैं, क्या उनकी परेशानी का इजाला किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। गवर्नमेंट को चाहिए, खास कर इस वक्त जो माशी हालात हैं मुल्क के, इस वक्त पंजाब के जो ताजरों के जो मसाइल हैं, बहुत हमारी कपड़े की इंडस्ट्री है वो बुरा हाल हो चुका है और तबाह होने के बेधाने पे है। तो इसमें अगर वो रिलीफ दे सकते हैं बजट में तो अगर दिया है तो वेलकम, हम उनको अच्छा कहेंगे, वरना फिर वही असबर वाहिद वाला। ताजरों का मजीद कहना था कि सूबाई बजट में फैसलाबाद के लिए बहुत कम प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। बजट में रिलीफ न मिलने पर मजदूर तबका इंतहाई परेशान। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग के दिहाड़ी और मेहनत कशों ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। बोले कारोबार न होने से रोजगार के मौके खत्म हो गए। बजट में उन्हें कोई रिलीफ मिला, न ही उजरत में इजाफा किया गया। बजट में रिलीफ न मिलने पर फैसलाबाद में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ात। मजदूरों का कहना था कि कारोबार न होने से रोजगार के मौके खत्म हो गए। मजदूर के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने बजट में मजदूरों को कोई रिलीफ नहीं दिया। मुकान च मजदूरी करन आए हैं घंटा गारे च, लेकिन 3-4 दिन हो गए ने कोई काम नहीं मिल रहा। घर जाते हैं तो बिजली वाले उत्थे कहते ने बिल तारो, असी उतों नस के इधर आ जाने। कोई काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई ज़्यादा है, मजदूरी है नहीं। बजट दे विच कोई शै भी नहीं, मजदूरों को कोई सहूलत नहीं मिली। महंगाई के दौर में बजट में रिलीफ न मिलने पर टोबा टेक्सिंग का मजदूर तबका मायूस। मेहनतकश तबके का कहना था कि बजट में उन्हें रिलीफ मिला, ना ही उजरत में इजाफा किया गया। बजट से उनकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी। मजदूरी मिल रही, 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं, सारा कुछ खिदमत नहीं हो रही जी, दिन नहीं पूरे हो रहे, रोटी नहीं पूरी हो रही है। अपनी मुतालबा है मजदूरी ਵਧਾਏ। गवर्नमेंट आई है, बहुत ज्यादा काम करा रही है, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ पता है काम करा रही, लेकिन ਸਾਨੂੰ मजदूर तबके ਨੂੰ अगर कुछ रिलीफ नहीं मिली तो की फायदा है काम कराਉਣ ਦਾ, सड़कों ਦਾ, पुल बनाਉਣ ਦਾ की फायदा। मजदूरों का मजीद कहना था कि उजरत में इजाफे के बगैर उनके मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है मगर कारोबार नहीं है। फैसलाबाद सनती मरकज बनने को तैयार। हुकूमत गेम चेंजर मंसूबे पर मेहरबान। फेडमिक के लिए बड़ा बजट मुख्तस। 7 अरब से जायद का तरक्याती पैकेज मिल गया। 300 एकड़ पर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी मंसूबा शुरू करने की तजवीज पेश की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बॉन्डेड वेयर हाउसेज, फेडमिक सिक्योरिटी सिस्टम और कम्युनिटी सहूलियात की स्कीमें भी शामिल की गई। पंजाब के बजट में फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फेडमिक की स्कीम्स भी शामिल। बॉन्डेड
हाउस की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए की स्कीम बजट में रखी गई। फेडरिंग में सिक्योरिटी सिस्टम और कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए 88 करोड़ 20 लाख की स्कीम शामिल। दोनों स्कीमों को दीगर तरक्याती प्रोग्राम की स्कीम बजट में शामिल किया गया है। सूबाई बजट में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत फैसलाबाद के लिए नई बड़ी स्कीम तजवीज। 6 अरब की लागत से 300 एकड़ पर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी की डेवलपमेंट होगी। बजट 2026-27 में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद बनाने की तजवीज भी पेश की गई है। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडमिक काशिफ ज़िया का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इकोनॉमिक जोन के लिए खतीर बजट खुशाइंद है। बेहतर सिक्योरिटी और कम्युनिटी सहूलियात से आलमी तकाज़ों की तकमील मुमकिन होगी। फेडमिक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इसकी तरक्की फैसलाबाद शहर और मुल्क के लिए तरक्की है। तरक्याती काम अब जल्द पाए तकमील को पहुंचेंगे और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। और बड़ा खुशाइंद कदम है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर इतनी खतीर रकम जो है वो हमें दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम जो है इसकी बाउंड्री वॉल होगी, इसकी सिक्योरिटी वैन्स होगी। चाइनीज जो है वो इस पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर खर्च करने के लिए और वहाँ पे सिक्योरिटी सेफ जोन बनाने के लिए मैं पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब गवर्नमेंट और इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो बजट में ये खतीर रकम जो दी। पंजाब के बजट में इकोनॉमिक जोन के लिए सहूलियात बढ़ने से मुल्क में मुआशी इस्तेकाम और तरक्की मुमकिन होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। माली साल 2026-27 की सूबाई बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कवानीन में बड़ी तब्दीली। जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। इक़दाम का मकसद टैक्स वसूली में शफाफियत लाना। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अपनी जायदादों की सेल्फ असेसमेंट पर 5% रियायत दी जाएगी। अब आपको बताएं कि गैर फाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कौमी खजाने पर बोझ बन गई। फैसलाबाद में 706, झींबे के झंग की 725 में से 417 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज गैर फाल। फैसलाबाद डिवीजन के सर्कल रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को अरसाल कर दी। एनपीएल कर्ज आबादीकारी डेवलपमेंट कमेटी अमूर और ऑडिट अमूर इल्तवा का शिकार।